Good morning, student. Jai Swaminarayan. Welcome back to Atmiya Green School, Jhareshwar Bharuch. My name is Swati Sharma, and it's class 9th maths, and we have completed activities. Okay, in activity book we have already completed activity number 4, and activity number 4 and 3, activity 3 and activity 4 are same. Okay, so if you want to skip any one activity, मीन्स अगर आप एक्टिविटी 3 कर रहे हैं तो 4 ना करें तो भी चलेगा, और इफ़ यू डूइंग एक्टिविटी नंबर 4 देन यू हैव टू स्किप एक्टिविटी नंबर 3. Okay, understand? So, and let's see activity 5. But if you have skip any activity, but remember thing, what is your learning outcomes, what is your activity, and the question answer and mental maths is necessary to read. Okay, understand? So you have to complete all the question answers, and you have to read what is learning outcomes. Okay, understand? Because both the activities are same, so I will told you do any one activity, activity 3 or activity 4. Okay, understand? Now what is activity number 5? Activity number 5 is quadratic polynomial. Okay, so what is the objective in this? Learning geometrical representation of factorization of the following quadratic polynomial. क्या है quadratic polynomial? x square plus 5x plus 6 and x square minus 5x plus 6. Okay, what is knowledge? What is the main knowledge you have to know? Knowledge of quadratic equation. Okay, and splitting of the middle term of a quadratic polynomial. Splitting of the middle term of a quadratic polynomial. Okay, understand? जैसे such as ax square plus bx plus c. Okay, and when we split these terms, we can write a into x plus p and x minus q. Okay, where minus p plus q is equal to minus b upon a, and minus p into q is equal to c upon a. See, whenever we solve quadratic equation, if the quadratic equation in the form of ax square plus bx plus c. Okay, so whenever we write p plus q माइनस पी प्लस क्यू, डेट मीन्स अगर आप इसको इस फॉर्म में लिखते हैं तो आप इसको लिख सकते हैं ए कॉमन निकाल करके, अंदर लिख सकते हैं एक्स प्लस पी एंड एक्स माइनस क्यू और सो ऑन. ओके, सो इस टाइप से आपको आंसर मिलता है, और उसमें आपका माइनस पी प्लस क्यू क्या होगा बेटा? माइनस बी अपॉन ए, मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉन्स्टेंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स upon coefficient of x square. Okay, similarly what is zeros, multiplication of zeros, p into q क्या होगा? c upon a, means constant upon coefficient of x square. Okay, understand? And you have to know what is area of rectangle, area of square. Okay, if you know these things, then you can easily solve the this activity. Okay, student, because it is very less time, so when I will complete total activity 9 एक्टिविटी तक हमारा जो है वो PT1 में जो चैप्टर्स हैं 9 एक्टिविटी तक वो PT1 में आ चुके हैं. ओके, सो इन 9 में से कोई भी 4 एक्टिविटीज़ you have to complete it, and you have to make an video and send me. ओके, 1 to 9 टोटल कितनी एक्टिविटीज़ हो गई? 1 to 9 एक्टिविटीज़ में से कोई भी 4 जो आपको बहुत अच्छी लगे वो आपको मुझे वीडियो बना करके, स्मॉल वीडियो मीन्स 2 और 3 मिनट्स से ज़्यादा का वीडियो नहीं होना चाहिए. अंडरस्टैंड? सो यू हैव टू सेंड मी. ओके, अंडरस्टैंड? एंड एनी 4, एंड यू हैव टू लर्न ऑल द क्वेश्चन आंसर एंड ऑल द लर्निंग आउटकम्स. ओके, आपको कोई भी 4 के वीडियो बनाने हैं, बट एक्टिविटीज़ आपको सारी की सारी समझ में आनी चाहिए, फर्स्ट थिंग. एंड सेकेंड थिंग इज़ डेट
जब आपने एक्टिविटीज़ सारी एक्टिविटीज़ जब आप कर लेंगे तो उसमें लर्निंग आउटकम्स एंड क्वेश्चन आंसर, मेंटल मैथ्स, ये आपको कंप्लीट करने हैं. ओके, अंडरस्टैंड. सो नाउ लेट्स सी what is material required in this question. Glaze paper, blue, green, orange, yellow and pink. आपको ये इस टाइप के अलग अलग कलर्स के ग्लेस पेपर ले लेना है. वाइट शीट ऑफ पेपर, ज्योमेट्री बॉक्स, रूलर, पेयर ऑफ सीजर एंड ग्लू स्टिक. ओके, अंडरस्टैंड. एंड व्हाट इज़ द प्रोसीजर? सी, दिस एक्टिविटी इज इन योर बुक पेज नंबर 23, 24 and 25. Okay, so what is the procedure for this activity? The procedure for this activity is every x square represent the area of pink square. ओके, आपको क्या करना है, जितना भी एक्स स्क्वायर आप ले रहे हैं, एक्स स्क्वायर मीन्स आप एक्स की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, उसके लिए आपको क्या लेना है, पिंक कलर के ग्लेस पेपर पर आपको क्या करना है, स्क्वायर बनाना है. ओके, अंडरस्टैंड. साइड एक्स यूनिट. देयरफॉर टू रिप्रेजेंट 2x स्क्वायर यूज 2 पिंक स्क्वायर ऑफ साइड एक्स यूनिट और टेक x इज इक्वल टू 3. ओके, 3 यूनिट ले लीजिए आप. ओके, फॉर एग्जाम्पल. ओके, नाउ एवरी x रिप्रेजेंट एरिया ऑफ ग्रीन रेक्टेंगल स्ट्रिप ऑफ डायमेंशन 1 into x. ओके, अंडरस्टैंड. So for 5x use 5 green strip each of dimension 1 into x. See, x square जो ऊपर वाली फर्स्ट इक्वेशन पढ़ेंगे. फर्स्ट इक्वेशन इज x square plus 5x plus 6. Okay, so when you get take x square, so x square को हमें क्या लेना है बच्चों, x is equal to 3 ले लीजिए आप. Okay, understand. And now when you talk about x, so x के साथ में क्या है, 5. Okay, so you can take 5x, use 5 green strip of dimension 1 into x. Okay, every minus x is represented by a value rectangle strip of dimension 1 into x. Okay, for minus 5x use 5 blue strip each of dimension 1 into x. Okay, all positive integer are represented by yellow units square and all negative integer are shown by orange unit square. आप अपने मन से कोई और कलर्स भी ले सकते हैं. ओके, ज़रूरी नहीं है यहाँ पर जो कलर्स दिए हुए हैं वही कलर आपको लेने हैं, बट आपको डिफरेंट कलर्स ले लेने हैं. ओके, नाउ लेट अस कंसिडर द एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6. फर्स्ट हमारा एक्सप्रेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6. ओके, विच इज़ ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. ओके, सो द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर. अब हमने 5x को अगर स्प्लिट करेंगे, सो व्हाट वी कैन राइट, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6. इन दोनों टर्म्स को ध्यान से देखिए तो हम x कॉमन निकाल सकते हैं. यहाँ पर हम लिखेंगे x प्लस 3, यहाँ से हम दोनों में से 2 कॉमन निकालेंगे, अंदर बचेगा x प्लस 3. सो योर फैक्टर्स इज x प्लस 2 एंड x प्लस 3. ओके, अंडरस्टैंड. सो टू रिप्रेजेंट एक्स स्क्वायर ड्रॉ पिंक स्क्वायर. हमने क्या किया, पिंक स्क्वायर ड्रॉ करा है ऑफ x यूनिट. टू रिप्रेजेंट 3x ड्रॉ 3 रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ऑफ ग्रीन कलर ऑफ डायमेंशन 1 into x. हमने 5 टोटल निकाली हैं, उसमें से हमने 3 अलग कर ली और 2 अलग कर ली. ओके, अंडरस्टैंड. नाउ व्हाट कैन यू डू टू रिप्रेजेंट 6, ड्रॉ 6 येलो यूनिट स्क्वायर. हमारे पास कांस्टेंट टर्म क्या है, 6. ओके, अंडरस्टैंड. कट ऑल द स्ट्रिप फ्रॉम द ग्लेस पेपर. नाउ paste all the strip together on the white sheet of paper as shown. हमको फिगर दिया हुआ है पेज नंबर 24 पर. ओके, उस हिसाब से आपको सारे की सारी स्ट्रिप्स एक ही स्क्वायर में लगा लेनी है. ओके, अंडरस्टैंड. सो दिस इज़ योर केस 1. नाउ केस 2 में आपका है माइनस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6. सो आपको क्या करना है, इसको स्प्लिट ऐसे करना है कि आपको ऐड करने पर तो प्लस 6 आता है,
बट सब्सट्रैक्ट करने पर क्या आना चाहिए, -5x आना चाहिए. ओके, सो -3 and -2, the factors of these, when we can go for splitting of x square minus 5x plus 6, so we can get x square minus 3x minus 2x plus 6. Okay, understand? So student, this is our factors, means x minus 3 and x minus 2 are our factors. Okay, सो सेम मेथड है. मेथड पेज नंबर 25 पर आपको टोटल मेथड्स कंप्लीट सेकेंड केस की मेथड दी हुई है. ओके, नाउ व्हाट इज़ योर ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूज़न. क्या आप कैलकुलेशन आपका क्या कह रहा है, आपने जो आंसर निकाला उसका कंक्लूज़न क्या है. सो एरिया ऑफ 5 ग्रीन स्ट्रिप इज इक्वल टू 5x मीन्स 2x प्लस 3x. Area of pink square is x square. Area of 6 yellow unit square is 6. ओके, आपने 6 येलो यूनिट स्क्वायर रखे हैं, सो आपका एरिया कितना हो गया उसका 6. अंडरस्टैंड? सो टोटल एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑब्टेन x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, और यू कैन राइट इट x प्लस 3 एंड x प्लस 2. ओके, अंडरस्टैंड? और सेकेंड केस में आप उसे क्या लिख सकते हैं, x माइनस 3 एंड x माइनस 2. ओके, अंडरस्टैंड? सो व्हाट वी गेट, we verified the factor of two quadratic polynomial geometrically by paper cutting and pasting. आपने क्या किया, पेपर कट और पेस्ट करके उसे ज्योमेट्रिकल प्रूफ किया है. ओके, अंडरस्टैंड? what is your learning outcome? Above method give us the geometrical interpretation of the factorization of quadratic expression of the form ax square plus bx plus c, or we can say that ax square minus bx plus c. Okay, what is your remark? What is your learning outcome? It is necessary to write down. Okay, understand? Now you can complete all the questions. जो आपको हर एक एक्टिविटी के नीचे जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, मेंटल मैथ्स दिया हुआ है, ये आपको कंप्लीट करना है. बिकॉज इन योर एग्ज़ाम, अभी जो आपकी एग्ज़ाम्स चल रही हैं उसमें आपको MCQ टाइप के क्वेश्चन ही आने वाले हैं. सो यू हैव टू कंप्लीट दीज क्वेश्चंस. ओके, अगेन एंड अगेन आई विल टोल्ड यू, यू हैव टू कंप्लीट दीज ऑल क्वेश्चंस. ओके, नाउ सी द एक्टिविटी नंबर 6. सी स्टूडेंट, जो हमने आइडेंटिटीज़ पढ़ी हैं सेकेंड चैप्टर में, ओके, वो सारी आइडेंटिटीज़ को आप किस टाइप से ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो दीज आर अवर एक्टिविटी 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. ओके, these all activities are having for आइडेंटिटीज़. ओके, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ जो हमने पढ़ी हैं उन पर ही डिपेंडेंट है ये सारी की सारी. सो यू हैव टू रीड आउट एंड मेक एनी 4 वीडियोस, और बहुत स्मॉल वीडियो होने चाहिए, 2 और 3 मिनट के, इससे ज़्यादा के वीडियो नहीं होने चाहिए. ओके, जो आप स्ट्रिप पेस्ट कर रहे हैं, उस पेस्ट करने से आपको क्या लर्निंग आउटकम हो रहा है वो आपको उस वीडियो में मुझे एक्सप्लेन करना है. ओके, अंडरस्टैंड? नाउ सी योर एक्टिविटी नंबर 6, that is algebraic identity a square minus b square is equal to a minus b and a plus b. Okay, so here also we know that area of square means area of square is side into side. Okay, area of rectangle length into breadth. Okay, what is material required? White sheet of paper, 2 glaze paper, pink and blue. Okay, a pair of scissors, geometry box, glue stick, ये आपके सबके घरों पर मिल जाता है easily. Now what is the procedure? Same procedure we have to apply. Okay, take any 2 distinct value of a and b. Say a is equal to 5, b is equal to 3. आपने कोई भी 2 वैल्यू ले ली, a is equal to 5 and b is equal to 3. Draw pink square of side 5 unit and name it as a b c d as shown figure 1. ओके, पेज नंबर 28 पर आपको फिगर 1 में जैसा दिया हुआ है आपको वैसा ही पिंक वाले से बना लेना है. आप चाहें तो दूसरे कलर के पेपर भी ले सकते हैं. ओके, अंडरस्टैंड? नाउ ड्रॉ ब्लू स्क्वायर
of site 3 unit and name it as EFGH as shown figure second. ओके, आपने a इज इक्वल टू 5 लिया है, b इज इक्वल टू 3 लिया है, आपने 2 स्क्वायर ड्रॉ करे हैं. नाउ व्हाट यू कैन डू, आपको ABCD जो आपका स्क्वायर है उसके अंदर EFGH को करना है. कट दिस स्क्वायर फ्रॉम ग्लेस पेपर. आपने कट कर लिया. पेस्ट 2 स्क्वायर ऑन वाइट शीट ऑफ पेपर. स्क्वायर EFGH आपने एक बनाया EFGH एंड इज पेस्टेड और स्क्वायर ABCD. सी हियर आपको फिगर नंबर 3 दिखेगा पेज नंबर 28 पर. ओके, सो आपने क्या किया, EFGH को ABCD के ऊपर ही आपने पेस्ट करा. ओके, सो सी हियर ज्वाइन FC. अब जो आपको F दिख रहा है, F से C को ज्वाइन कर दिया है आपने. नाउ व्हाट यू कैन सी, FC एंड डॉटेड लाइन वी गेट 2 क्वाड्रिलेटरल. हमें यहाँ पर 2 क्वाड्रिलेटरल दिख रहे हैं, EFCB एंड GFCD. ओके, ऑफ इक्विलेटरल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज रिवर्स टू अदर एज शोन फिगर 4. आपको 4th फिगर दिख रहा है पेज नंबर 29 पर. ओके, आपको इस टाइप से 2 क्वाड्रिलेटरल दिखेंगे और जब आप ये 2 क्वाड्रिलेटरल को ऐड करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, ये रेक्टेंगल. ओके, नाउ प्लेस दीज 2 क्वाड्रिलेटरल ऑन अदर साइड वाइट sheet of paper such that we get a rectangle. One piece of quadrilateral is reverse to, आपको एक पीस के ऊपर दूसरे पीस को रख देना है. ओके, अंडरस्टैंड. सो आपको क्या मिल रहा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल मिल रहा है. ओके, सो फिगर 1 एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू A स्क्वायर मीन्स 25. ओके, 5 का स्क्वायर. फर्स्ट एरिया क्या था आपका, एरिया ऑफ स्क्वायर 5 का स्क्वायर. ओके, सेकेंड का एरिया क्या है आपका, 3 का स्क्वायर, दैट इज़ 9. सो व्हेन यू एड 25 प्लस 9, सो यू कैन गेट 16. 25 स्क्वायर A square minus B square. So when you subtract both the numbers, so you can get 16. 16 is a square of 4. Okay, so एरिया ऑफ रेक्टेंगल EDGB. जब आप EDGB का एरिया निकालेंगे, सो A माइनस बी सी. हमारा जो पूरा E रहेगा, इस फिगर में देखेंगे आप ध्यान से, जो E है वो क्या है, A माइनस बी, क्योंकि A जो है हमारा ये पूरा के पूरा A है, दिस होल आर A. बट जब उसमें से B माइनस हो जाएगा तो हमें किसका मेजरमेंट मिल जाएगा, EB का. ओके, अंडरस्टैंड. सो एरिया ऑफ ABCD माइनस एरिया ऑफ EFGH. ओके, अंडरस्टैंड. सो यू कैन राइट इट, एरिया ऑफ रेक्टेंगल EDGB is equal to EB into ED. EB is A minus B, ED is A plus B. A minus B is 5 minus 3, 5 plus 3, that is 5 minus 3 is 2 and 5 plus 3 is 8, so you can get 16. Both the answer is same. So what is result, A square minus B square is equal to A minus B into A plus B. Okay, understand. So this is your activity 6. Okay, understand. And what is learning outcome, what type of question for these activities से आप कौन कौन से questions पूछ सकते हैं, कौन कौन से question आ सकते हैं. So you can read it, okay, and learn it carefully. Now activity number 7. This is also an identity, that is A cube plus B cube. Okay, so what you can do, algebraic identity, A cube plus B cube is equal to A plus B into A square minus AB plus B square. Okay, so this is cube. देखिए यहाँ पर अभी तक हम स्क्वायर की आइडेंटिटी पढ़ रहे थे, अब हमें क्यूब के बारे में पता होना चाहिए. ओके, सो व्हाट इज पर्सपेक्टिव नॉलेज, ए वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड. ओके, अंडरस्टैंड. द मेथड इज सेम. ओके, व्हाट इज मटेरियल रिक्वायर्ड, सी हियर, and what method you can do. Okay, so read it carefully and do by yourself activity number 7. Okay, understand. But अगर आप कोई भी 4 एक्टिविटी का वीडियो बना रहे हैं
तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाकी की एक्टिविटी को देखेंगे ही नहीं। आपको क्या करना है, उसका लर्निंग आउटकम्स रीड आउट करना है, और रीड आउट करके उसके जो क्वेश्चन आंसर हैं उसे आपको लर्न करना है। ओके, अंडरस्टैंड? सो यू हैव टू रिमेंबर ऑल द क्वेश्चन आंसर एंड MCQ टाइप क्वेश्चन। जो मेंटल मैथ्स दिया हुआ है वो आपको ज़रूर से कर लेना है। ओके, अंडरस्टैंड? सो दिस इज़ योर एक्टिविटी नंबर 7 एंड 8 इज़ ऑल्सो अ एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, a plus b whole cube. Okay, so same here, you have to know volume of cube and volume of cuboid. Okay, understand? And your activity number 9, that is algebraic identity a cube minus b cube, you have to complete these activity also. Okay, understand? So see these all activities, and जो आपको बहुत अच्छे से आ रही है उस इनमें से कोई 4 एक्टिविटीज़ का छोटा छोटा वीडियो मुझे बना करके आपको भेजना है। मेक एन स्मॉल वीडियो एंड सेंड मी। ओके, अंडरस्टैंड? सो कंप्लीट दिस एक्टिविटी बाय मंडे तक आप लोगों को मुझे भेज देना है। ओके, द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन इज़ मंडे। ओके, हैव अ गुड डे।